Narayan. In this video, I have selected a small conversation between Rishi Narad and the king of the Himalayas, King Himavat from Shiv Puran. Now, we all know that King Himavat and Meena Devi has a daughter, which is famously called as Goddess Parvati. But the first name that was assigned to her as per Shiv Puran is Kali. So, Goddess Parvati was Kali first. Now, when Kali was growing up, she developed intense devotion for Shiv. She knew that she is an inseparable part of Shiv, and therefore she was attracted to Shiv and Shiv alone. So, she grew up by thinking of Shiv alone. This was her predominant thought, emotion, and predisposition. Now, once Rishi Narad comes at the door of the king and they all meet, he is welcomed with water to wash his hands and feet with. They all exchange pleasantries, and all four of them sit together in their court. And the king and the queen are quite concerned for their daughter. So they put up a question to Rishi Narad. They say that, please tell me the good and bad fortune of my daughter, because I'm really concerned of her future. Who will be her future husband? Who will be she given to? Please tell me all this. So Rishi Narad welcomes his inquiry, and he is the master in the science of palmistry, master in the science of physiognomy. He can tell the entire life of a person by looking at one single symbol on their body. So, such is the knowledge of Rishi Narad. And then Rishi Narad analyzes the hand of Parvati, and then he presents his prophecy. He says that your daughter is going to lead a very beautiful, glorious, and chaste life. She is going to bring delight to her husband. She will also enhance the fame and glory of you both and your kingdom. She will be fiercely chaste to her husband. She will be devoted to her husband, and through this devotion itself, she will acquire a lot of powers and energy. So, chastity and devotion of a wife to her husband is emphasized by Rishi Narad. Then he says that your daughter is going to attain the state of a goddess, and she will be a goddess who will be worshipped even by Narayan, Brahma, and all other gods. She will be a goddess who will bestow boons and blessings on all her devotees. So, such will be her might and energy. She will almost be eternal, an eternal being. So, listening to this, both parents are quite delighted. And then Rishi Narad goes on to describe the last line. So he says that there is one single line on her hand which might not delight you, which might disturb you. So please listen to what this indicates. He says that the future husband of your daughter is going to be a naked yogi. He is going to roam around everywhere. He will have no father, no mother. He will be above desires. He will have no desires in his mind, in his life. He will be indifferent to praise, dispraise, honors, and his habits and habitations will be quite inauspicious. You may even abhor it, condemn it, but such is the decree of providence. So, this is what Narad Muni describes to the king and the queen, and all three listen. And Parvati is delighted in her mind, because she knows that her marriage is solemnized by Rishi Narad with Shiv. So she knows that Rishi Narad has indicated to her that she is going to marry Shiv in the future. So she is very happy, but King Himavat and Meena Devi are quite disturbed. And then they ask Narad that what is the remedy to avert this? I don't want to have this future for our daughter. And Rishi Narad tells them that I cannot avert it, you cannot avert it, no one can avert it, because the line which has been drawn on her hand is not drawn by anyone other than Brahmadev. Brahmadev himself has drawn this, and nothing can be undone which is done by Brahmadev. So, this is the decree of providence of your daughter. You have to agree to it. This is going to be. So, please live with it. And they both are quite disturbed. And then Rishi Narad reasons with them, and then he assuages their grief, and he tries to delight them with soothing words. He says that there is one person in the world, in all the worlds, who is a fitting husband for your daughter. His name is Shiv. He is the eternal primordial deity, and in his original form he is actually formless. He doesn't have a form, but only for his devotees he's assumed a form, physical form in this life, and he has assumed these defects as well. So voluntarily these defects he has assumed in his own self. But the majesty, now this is what I want to convey to you.
Rishi Narad speaks that the majesty of Shiv is such that all these defects do not become the cause of misery. And he says that if these defects are seen in a non-majestic person, in a normal person, then these defects will speak out and express themselves very profoundly, profusely. Because if there is no majesty in a man, if there is no divinity in a man, then the defects will speak out loudly. Then we will only see the defects per se, and then looking at the defects, then we perhaps will not even see him, we will not even touch him, we will not go near that man. So we will consider that man as unworthy of having discussion with, unworthy of even looking at. So if the defects are large and the majesty is slow, is quite minimal, or there is no majesty at all. So here Rishi Narad reasons that Shiv is the divine God, and the majesty of Shiv is all pervading, that all these defects, small defects, they will all dissolve like a river dissolves in the sea. So all these defects that you see will not become the cause of misery for your daughter, and neither for you and for Shiv himself, because he is quite large, he is almost divine. So such is the description of Rishi Narada. And this is a beautiful message that I got it, and I wanted to share it with you, that if you and I we all have defects. If we actually enlighten our own self by walking the path of virtue, walking the path of piety, then we will acquire those majestic qualities, virtuous qualities, that even if we have defects, the majesty of our own self will grow year by year. And then the defects, if you don't grow the defects, if you grow the majesty, the defects will remain, but people will then start looking at us in a different way, different manner. They will actually look at the majestic nature of our own self first, and then they will probably perhaps even forget the defects that we have. And Rishi Narad gives example of three beings: the sun god, fire god, and Ganga. He says that all three even have, these three have a lot of defects, but the majesty of these three is so much that the defects are almost negligible, infinitesimal. We don't have to even look at it. The defects are no defects as such, even though they exist, but the majesty of these three beings are such, is so divine. So if the majesty of these three is divine, what to say about Shiv, who is the source of all these three? So it's a beautiful message that if the majesty of a person is large, then I mean he's quite divine. A man is quite divine. Even if he has small defects, we have to forego those, and we have to not look at those and not pick those alone and judge their character. ये जो संवाद मैंने लिया है वो मैंने शिव पुराण से लिया है। बहुत सुंदर सूक्ष्म संवाद है, ऋषि नारद और हिमालय के राजा राजा हिमावत के बीच में है। और हम सबको पता है कि राजा हिमावत और मीना देवी की एक पुत्री है जिनका नाम है भगवती पार्वती, माता पार्वती। मगर शिव पुराण के आधार पर उनका जो पहला नाम होता है, जो जन्मी होती है, तब उनका पहला नाम जो उनको दिया जाता है वो है काली। सो जो माता पार्वती वो पहले माँ काली थी, उनका नाम पहले जन्म का काली था, और फिर लोगों ने उनको अलग अलग नाम दिए उनके अलग अलग गुण के आधार पर जब वो बड़ी हो रही थी। फिर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई माँ काली, तो उनमें, उनके हृदय में शिव के प्रति इतनी आसक्ति जन्मी, और वो इतनी आकृष्ट होती थी शिव के प्रति कि वह ऐसा मानती थी कि मैं शिव की एक अविभाज्य अंग ही हूँ, मेरा गंतव्य शिव ही है, मेरे जीवन का ध्येय जो है वो शिव को प्राप्त करना ही है। तो ये ही इनका प्रधान भाव था जब वो बड़ी हो रही थी, यही भाव के साथ वह बड़ी हुई, और शिव के विचारों में ही वह तन्मय रहती थी, ओत प्रोत रहती थी। तो यही उनका जीवन था। और जब वह बड़ी हुई तो एक दिन ऋषि नारद उनके पास आते हैं, राजा उनका स्वागत करते हैं, राज्य में आते हैं, उनको पानी दिया जाता है हाथ पैर मुंह धोने के लिए, और चारों जन बैठते हैं, राजा रानी माँ पार्वती और ऋषि नारद, चारों बैठे हैं, संवाद कर रहे हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। और फिर राजा और रानी बहुत ही चिंतित होते हैं अपनी पुत्री के लिए। वो ऋषि नारद को पूछते हैं कि
हमको ये चिंता है कि हमारी पुत्री का वर कैसा होगा, हमको किसको देना है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता है और कृपा करके आप हमें हमारी पुत्री का अच्छा बुरा दोनों भविष्य हमें आगे उनका बताइए, हमें जानने की उत्सुकता है। और ऋषि नारद को यहाँ पर बहुत ही बड़ा मास्टर कहा गया है, जो पामिस्ट्री, जो हाथ देखते हैं, हाथ की रेखाओं को देख के वह जीवन का चरित्र बता देते हैं, वैसे वो मास्टर है, ज्ञानी है, परम ज्ञानी है। और जो शरीर के जो चिन्ह होते हैं, कोई भी मनुष्य के शरीर को देखते हैं और कोई चिन्ह अगर उनको दिखता है तो वो एक चिन्ह से ही वह उनके पूरे जीवन का विश्लेषण कर सकते हैं कि उनका जीवन ऐसा ऐसा होगा। तो इतना बड़ा परम ज्ञान ऋषि नारद में है। तो ये जानते हुए राजा ने उनको पूछा और ऋषि नारद ये प्रश्न का स्वीकार करते हैं और फिर वह माता पार्वती का हाथ देखते हैं, रेखाएं देखते हैं हाथ की, और फिर उनको वर्णन करते हैं कि उनकी पुत्री का जीवन कैसे होगा। वह कहते हैं कि आपकी पुत्री का जीवन बहुत ही सुंदर होगा, सुखमय होगा और तपमय भी होगा। वो कहते हैं कि आपकी पुत्री ना तो उनके पति को ही प्रसन्न करेगी और आपका आपके आपका आपकी माता पिता दोनों का और आपके पूरे राज्य का ही नाम रोशन करेगी, तो उनकी कीर्ति बढ़ाएगी, ख्याति बढ़ाएगी। तो ऐसी होगी आपकी पुत्री, बहुत ही सुख सुविधा उनको मिलेगी। और ऐसी पातिव्रत धर्म से पतिव्रता नारी होगी कि उनके पातिव्रत धर्म से ही वह बहुत सारी शक्ति प्राप्त करेगी, बहुत सारी पदवी प्राप्त करेगी और एक देवी की पदवी भी उनको मिलने वाली है। तो आगे जाके वो ऐसी देवी होने वाली है कि जिनकी स्तुति पूजा स्वयं नारायण करेंगे, ब्रह्मदेव करेंगे और सभी देवगण भी उनकी स्तुति करेंगे। तो ऐसा देवत्व, ऐसा स्थान प्राप्त करने वाली है आपकी पुत्री। और यह स्थान प्राप्त करके वह आपकी पुत्री अपने उनके भक्तों के लिए इतने बहुत सारे वरदान देंगी, आशीर्वाद देंगी। तो ऐसी महान देवी बनने वाली है आपकी पुत्री, मानो वह अमरत्व ही प्राप्त करने वाली है। तो ऐसा उनका जीवन होने वाला है। ये सुन के बहुत ही प्रसन्न होते हैं, मगर फिर ऋषि नारद कहते हैं कि एक ऐसी रेखा है उनके हाथों में जिसको अगर मैं उसका वर्णन करूं तो आपको कदाचित पसंद न आए, वह विपरीत होगा, तो मुझे आपको बताना ही है। तो वो कहते हैं कि ये एक रेखा का वर्णन आप सुनिए। वो कहते हैं कि आपकी पुत्री का जो पति है वह एक नग्न योगी की तरह पूरे विश्व में भ्रमण करेगा और उनके ना माता होंगे ना पिता होंगे, वह काम से रहित होंगे, उनके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं होगी। गृहस्थी की इच्छा तो दूर की बात है, मगर कोई भी इच्छा नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि मान सम्मान और उनके प्रभाव से भी वो ऊपर होंगे, तो उनमें कोई इच्छा ही नहीं होगी और मान सम्मान की भी उनको कोई चिंता नहीं होगी। और उनका जो रहन सहन होगा, उनके रहने का स्थान होगा, उनकी जो आदतें होगी जीवन की, वह कदाचित आपको अपवित्र लगे, अभद्र लगे। तो ऐसा वर उनको मिलने वाला है। तो ये सुन के दोनों राजा रानी बहुत क्रोधित होते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा कैसा। तो वो फिर ऋषि को पूछते हैं कि नहीं, हमको ऐसे वर को नहीं देना है हमारी पुत्री को, हमको ऐसा कुछ साधन बताइए जिसके माध्यम से ये टाला जा सकता है, हमको ये नहीं करवाना है, हम हमारी पुत्री को ऐसे वर को नहीं सौंपेंगे, ये हमने निर्णय लिया है, तो कृपा करके इसको टालने का उपाय बताइए। तो ऋषि कहते हैं कि इसको टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि आपने नहीं, मैंने नहीं, इनकी जो रेखा है, ये जो एक रेखा है वह स्वयं ब्रह्मदेव ने बनाई है। ब्रह्मदेव का किया तो कोई भी नहीं मिटा सकता है। तो ये तो आपको अपना भाग्य मानना ही पड़ेगा, आपकी पुत्री का भाग्य आपको मानना ही पड़ेगा। तो ये होना ही है, ये ब्रह्मदेव ने लिखा है तो ये होना ही है और ये आपको भोगना पड़ेगा। तो फिर भी चिंता में आ जाते हैं, मगर फिर ऋषि नारद उनकी चिंता दूर करते हैं। वह कहते हैं कि एक ऐसा मनुष्य है, एक पुरुष है जो समग्र लोकों में आपकी पुत्री के वर बनने के योग्य है। वो कहते हैं कि उनका नाम है शिव, और शिव जो है उनका वास्तव जो रूप है वह निर्गुण निराकार है, उनका कोई रूप ही नहीं है, मगर उनके भक्तों के लिए स्वयं से उन्होंने एक सगुण साकार का रूप धारण किया हुआ है, शरीर धारण किया है, और
उन्होंने जो ये जो मैंने अवगुण आपको कहे हैं, आपको जो अवगुण दिखते हैं कि वह नग्न होंगे, योगी होंगे, माता पिता नहीं होंगे, तो ये जो अवगुण है वह भी स्वेच्छा से उन्होंने धारण किए हुए हैं। तो वह स्वयं निर्गुण निराकार है, मगर इस जन्म में इन्होंने सगुण साकार का रूप लिया हुआ है, केवल और केवल अपने भक्तों को तारने के लिए। तो ऐसे है शिव। और फिर वो जो मुख्य तर्क रखते हैं, ये वीडियो का खास मैसेज है। वह कहते हैं कि अगर शिव में अगर आप ऐसे सब अवगुण देखते हैं, मगर शिव को अगर आप देखें, शिव में इतनी दिव्यता है, इतनी प्रभुत्वता है, इतना प्रभुत्व है, भव्यता है कि ये जो छोटे छोटे अवगुण हैं आपको दिखेंगे ही नहीं। जैसे एक नदी सागर में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो बैठती है, वैसे ही ये छोटे छोटे अवगुण है, वह उनकी जो दिव्यता है विशाल है, दिव्यता बहुत विशाल है, उसमें ये छोटे अवगुण घुस के स्वयं भी दिव्य हो गए। तो इसको भी हम दिव्य रूप से ही देखेंगे। तो ये नारद मुनि तर्क रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर यही गुण, ये जो आपको अवगुण दिखते हैं, यही सब अवगुण अगर कोई सामान्य पुरुष में अगर होते, तो फिर हम उनको कैसे देखते? तो उनके सामान्य पुरुष में फिर ये अवगुण बहुत चढ़ के बोलते, हमको केवल अवगुण ही दिखते, हमारा ध्यान अवगुण की तरफ ही आकृष्ट होता। तो फिर ऐसे पुरुष में फिर हमको, अगर वो पुरुष में थोड़ा सा भी दिव्यता है, थोड़ी सी छोटी सी, वह हमें नहीं दिखती। अगर छोटा छोटा सा तप है वो नहीं दिखता, क्योंकि ये जो अवगुण है वो चढ़ के बोलते हैं। अगर नंग धड़क है, माता पिता नहीं है, तो ये सब अवगुण हमें बहुत ही चढ़ के बोलते हैं। फिर हम ऐसा मानेंगे कि ऐसे पुरुष को तो देखना भी नहीं चाहिए, बात भी नहीं करनी चाहिए, इसके पास समीप नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हम मान लेते, ठान लेते। मगर यही अगर अवगुण है शिव में डाल दे, तो शिव में तो इतनी अपार दिव्यता है, तो इतनी सारी दिव्यता है, तो ये छोटे अवगुण क्या काम के, उनको तो आपको देखना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म तर्क किया है नारद मुनि ने। और फिर वो 3 उदाहरण देते हैं, 3 एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं राजा को कि एक आप सूर्य देव को ले लो, अग्निदेव को ले लो और गंगा माँ को ले लो। सूर्य देव हमें ताप देते हैं, बहुत ताप देते हैं, कभी कभी इतना ताप देते हैं 45-50 डिग्रीज। हमें काम पर जाना होता है, फिर भी ताप सहन करना पड़ता है, हम सहन नहीं कर पाते हैं। मगर ताप हमको सहन करना ही पड़ता है क्योंकि काम आवश्यक है। मगर हम ये एक अवगुण सूर्य देव का देखें, तो अगर हम दूसरा उनका गुण देखें कि नेत्र के देवता सूर्य है, अगर सूर्य नहीं होते तो हम कुछ देख ही नहीं पाते। सूर्य को तो नहीं देख पाते, मगर कुछ और भी नहीं देख पाते। हम अंधेरा भी नहीं देख पाते। अंधेरा भी हमको दिखता है, आंख बंद करते हैं तो अंधेरा हम दिखता है, वो भी सूर्य की कृपा से है। तो हम अंधेरा भी नहीं दिख पाते। सूर्य गर्मी में सागर से जल सींच लेते हैं और वर्षा ऋतु में वही जल वह हमको वर्षा के रूप में देते हैं। तो अगर वर्षा ही नहीं होती तो जीवन आगे नहीं चलता, क्योंकि वर्षा से अन्न उगते हैं, अन्न से हमें भोजन मिलता है, भोजन से वीर्य बनता है, वीर से संतान उत्पत्ति होती है। तो ये आगे संसार का चक्र अटक जाता सूर्यदेव नहीं होते तो। अगर अग्निदेव को ले, अग्निदेव उष्मा हमें प्रदान करती है, ठंडी में हमें गर्मी चाहिए होती है। सबसे बड़ा जो योगदान अग्निदेव का हमारे जीवन में है वो वैश्वानर अग्नि है। हमारे पेट में, हमारे उदर में जो वैश्वानर अग्नि है, हम जो भी भोजन करते हैं वो उनका भक्षण करती है। अच्छा, भोजन को वो तोड़ के भक्षण करके फिर उसमें से रक्त बनता है, वीर्य बनता है, हड्डी बनती है, मांसपेशियां बनती है, सब कुछ बनता है। तो ये जो बनने का जो क्रम है वो अग्निदेव के द्वारा ही आरंभ होता है। अगर अग्निदेव हमारा भोजन ही नहीं पचाती तो हम भोजन क्यों करते? भोजन हम कर ही नहीं पाते तो हम जीवित भी नहीं रहते। तो अग्निदेव का इतनी बड़ी दिव्यता है कि वह हमको ही जीवित रखती है, उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये देखते हुए अग्नि की जो हमें ऊष्मा मिलती है, कभी कभी हम जल जाते हैं छोटे से हाथ, तो ये अवगुण नहीं देखने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े दिव्य है अग्निदेव, हमें बहुत कुछ देते हैं। तो छोटी सी ऊष्मा अगर हमें लग जाती है तो वो अवगुण हमें नहीं देखना चाहिए। गंगा माँ को अगर हम देख ले,
अगर गंगा माँ का ये प्रदान है कि उसमें डुबकी लगा के ही सबको सबके पाप धुल जाते हैं, ऐसा शास्त्र का नियम है, शास्त्र का ये दिया हुआ ज्ञान है। और गंगा माँ ने फिर स्वयं कहा है कि अगर सब मेरे अंदर आके मैल धोएंगे तो मैं ही मैली हो जाऊंगी, तो मुझे कौन पवित्र करेगा। तो देवताओं ने उनको उत्तर दिया कि अगर आपके भीतर सच्चे साधु संत ऋषि मुनि अगर आएंगे, और कौन से सच्चे साधु संत, कौन से सच्चे साधु संत, अगर हम शास्त्र के आधार पर साधु संतों के जो गुण हैं वह हम ले, और वो गुण जो साधु संतों में है वह क्रियान्वित करते रहते हैं, क्रियान्वित है, चरितार्थ है, ऐसे ही साधु संतों को साधु संत कहा जाता है। ये साधु संतों की परिभाषा है। शास्त्र के माध्यम से जो गुण होते हैं साधु संतों के, ऐसे साधु संत अगर आप में डुबकी लगाएंगे तो आप पवित्र हो जाएंगी। ये तो प्रत्यक्ष जो दिखने वाले साधु संत हैं। अगर मैं कहूँ कि स्वयं भगवान वेद व्यास जो अभी भी जीवित है, वो भी कभी मन हुआ कि गंगा में स्नान करने आए, तो वो भी अगर अकेले आके स्नान करके चले जाते हैं अदृश्य रूप से, तो गंगा पूरी पवित्र हो जाएगी। स्वयं भगवान वेद व्यास है, अगर परशुराम भगवान आए वो भी पवित्र कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि गंगा माँ स्वयं कहाँ कहाँ से आती है, तो ब्रह्मदेव के कमंडल से लेके विष्णु भगवान के चरण से लेके महादेव के जटाओं से लेके फिर नीचे आती है। तो अगर हम ये मान के चले कि गंगा माँ तो तीनों देव त्रिदेवों के स्पर्श के बाद यहाँ पर आती है, तो अगर त्रिदेवों का स्पर्श गंगा को है, अगर हम गंगा को स्पर्श करें तो हमें भी थोड़ा सा फल वो तो मिलता ही है। अगर हम ये भाव से गंगा में डुबकी लगाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। और अगर हम ये माने कि गंगा बहुत मैली है, बहुत जन पाप धोते हैं, तो मैं इसमें फिर धो के और मैली क्यों करूँ, ये नहीं सोचना है। मगर गंगा सबके भाप पाप धोने के बाद भी इतनी पवित्र है, क्योंकि साधु संत उसमें नहा के उनको पवित्र करते हैं, त्रिदेव उनको पवित्र करते हैं। स्वयं गंगा का स्थान यही है, उनका स्थान नीचे नहीं आ सकता है। भले वो चीरकाल तक रहे और कितने कलयुग आने के बाद भी वो उसमें नहाए, फिर भी गंगा पवित्र ही रहेगी, क्योंकि उनका जो मौलिक स्वरूप है वह पवित्रता से ही उत्पन्न होता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल रावण का आपको दूं, तो रावण के जीवन को अगर हम देखेंगे तो उनके जीवन में आप अगर काम ले या लोभ ले, दोनों ले या एक ले या दोनों ले, तो उनके जीवन में इतने गुण थे, मगर काम और लोभ की प्रधानता बहुत बड़ी थी। तो ये चढ़ के बोलते थे, ये दिखता ही नहीं था, अच्छे गुण नहीं दिखते थे। तो अगर हम दूसरे और ले कि दूसरा कोई अगर कोई मनुष्य हो जिसमें बहुत ही अच्छे गुण हैं, मानो कि प्रहलाद को ले ले, प्रहलाद एक दैत्य है, उसको हमें नहीं नकारना चाहिए, वह हिरण्याकशपु का पुत्र है, दैत्य है। तो दैत्य तो देवताओं के दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, मगर प्रहलाद में इतना गुण था, उतनी भक्ति थी, वह चिरकाल तक इतनी भक्ति याद रखी जाएगी, ऐसी भक्ति उन्होंने की। और देवता भी मानते हैं कि प्रहलाद सबसे श्रेष्ठ भक्त है नारायण के। तो उनमें ये एक अवगुण था कि वह हिरण्याकशपु के पुत्र थे, दैत्य थे, दैत्यों का रक्त था, मगर उनका गुण इतना बड़ा था, इतना दिव्य हो गया, भक्ति इतनी दिव्य हो गई कि वह छोटा सा अवगुण था, वह हमें किंचित मात्र दिखता है, छोटा सा नेग्लिजिबल दिखता है, दिखने मतलब सोचने योग्य ही नहीं रह जाता है, इतनी अपार दिव्य भक्ति उन्होंने की। तो ये मैसेज ऋषि नारद हिमावत को देते हैं, और ये मैसेज हमें ये सीख देता है कि अगर हम सभी के अंदर अगर आप देखें तो अवगुण तो हो गए ही, अगर हम ऐसा माने कि हमारे सबके अंदर अवगुण है और हमको कुछ ऐसा करना है कि अवगुण यहीं रहे और गुण बढ़ते जाए, तो हमको जप तप व्रत उपवास के माध्यम से हमारे गुण बढ़ाने हैं, हमको भगवान के समीप जाना है, हमें भक्ति करनी है। अगर 1.25 घंटा, हमारे गुरुदेव कहते हैं 1.25 घंटा अगर आप 15-15 मिनट अलग अलग समय पे अगर आप भजन कीर्तन कीजिए, सुनिए नहीं गाइए, तो आपके हृदय भी बहुत कोमल होने लगेगा। और ऐसे अगर 5-6-40 दिन भी आप करें कंटिन्यूस निरंतर, तो आप में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाएगा कि आप भगवान के बहुत समीप जा सकते हैं। तो आप में अंदर सत्व गुण का उद्वेग होगा, सत्व इतना बढ़ता जाएगा कि आपके जो अवगुण है वो समाज वाले आपको देखेंगे ही नहीं,
केवल और केवल आपके जो बढ़ते हुए गुण को देखेंगे, क्योंकि आपके गुण बहुत बढ़ रहे हैं, दिव्यता बढ़ रही है, सत्व गुण बढ़ रहा है, सत्व गुण के साथ जो लक्षण आते हैं गुण के वो बढ़ रहे हैं, तो उन सभी अच्छे अच्छे लक्षणों की तरफ सभी का ध्यान जाएगा और अवगुण एक कोने में पड़े रहेंगे, दिखेंगे भी नहीं और लोग देखेंगे भी नहीं, क्योंकि फिर आपने बहुत दिव्यता प्राप्त कर ली होगी। तो ऐसा मैसेज हमें ऋषि नारद देते हैं कि हमें जीवन भी ऐसे व्यापन करना चाहिए कि अगर कोई डिफेक्ट्स है, कोई अवगुण है, उसको अगर हम न बढ़ाते हुए हम हमारे गुणों पर ध्यान दें, सत्व गुण पर ध्यान दें और उसके जो गुण है उसको हम चरितार्थ करें धीरे धीरे, तो हमारे गुण, हमारी दिव्यता, हमारा प्रभुत्व बढ़ता जाएगा, हम भव्य बनते जाएंगे और हमारे जो डिफेक्ट्स है, अवगुण है, वो छोटे ही रहेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। सामान्य मनुष्य में तो डिफेक्ट्स ही दिखते हैं बड़े से, क्योंकि उसमें प्रभुत्व होता ही नहीं है। प्रभुत्व नहीं होता है तो फिर ये जो अवगुण है वो चढ़ के बोलते हैं, मगर प्रभुत्व इतना बड़ा होता है तो ये जो अवगुण आते हैं वो छोटे कोने में बैठे रहते हैं। ये सुंदर संदेश ऋषि नारद ने ऋषि किंग राजा हिमावत को देते हुए हमें भी दिया है। अगर आपको ऐसे सुंदर सुंदर संवाद पसंद है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मगर गोवर्धन मठ नाम की एक सुंदर चैनल है यूट्यूब पर, उसको आप अवश्य सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है वो पूरे वैदिक वांग्मय का ज्ञान है। जो भी ज्ञान आप लेते हैं, अगर जीवन में थोड़ा सा भी आप उतारते हैं तो भी आपका धीरे धीरे कल्याण होने लगेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सो आई एंड अप हियर, I take your leave. Shiv Shankar Pralayanga.